Chalo, what will be the answer to the first question? Role of Sertoli cells is A. Muscles of which of the following layer of the uterine wall are responsible for causing labor during parturition? Myometrium. मायोमेट्रियम कि एंडोमेट्रियम? Myometrium. किसने एंडोमेट्रियम किया है? मस्कुलर लेयर बेटा यूट्रस की मायोमेट्रियम ही होगी, वैसे भी ध्यान रखो इस क्वेश्चन को. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नॉट अ ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा. प्रोस्टेट ग्लैंड तो है ना मेल्स में? बी. कॉपर्स ग्लैंड भी तो है बेटा. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. Vestibular gland. हाँ डी. डी. डी इज द आंसर. डी. वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स ये फीमेल में रहते हैं, वेस्टिब्यूल के बाउंड्री को सराउंडिंग. प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, समाइनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सब मेल में रहेगा. वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स आर इन द फीमेल. Onset of menstrual cycle at the time of puberty is called menarche. What is menstruum? Menstruum किसको बोलते हैं? Yes, the menstrual fluid which comes out is called menstruum. तो menstruum में यूट्रस की कौन सी लेयर बाहर आती है, ऐसा MCQ आता है? Endometrium. Endometrium. Yes. Yes. Endometrium. Yes. Menstrual is the menstrual fluid. So when this menstruum is coming out, it is the endometrium that comes out. वैसा MCQ भी आता है ये menstruum के साथ. All right. Not only over here, ये NEET में भी आता है. Menopause you know and menstruation you know. After release of secondary oocyte, Graafian follicle shrinks to form Corpus luteum. corpus luteum. चलो अभी ये नेक्स्ट 3 सॉल्व करो. चलो, कॉर्पस लूटियम मेनली सिक्रीट्स. Yes. Decreased level of progesterone and estrogen are observed in which phase? A. Menstrual phase. Rupture of the follicle and discharge of ova is known as what? Ovulation. चलो नेक्स्ट देखो. Ovulation occurs on 14th day of menstrual cycle. Luteal phase is also called secretory phase. Which hormone confirms pregnancy? HCG. HCG. Oxytocin. Yes, oxytocin does not play a role in menstruation. It is birth hormone. चलो, प्राइमोडियल फॉलिकल्स मतलब जर्म सेल्स. तो जर्म सेल्स क्या बनाएंगे? बोलो. जर्म सेल्स क्या बनाएंगे? मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारे क्या बना के रखेंगे? स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया का पूल बनता जाएगा, जो फिर आगे के फर्दर डिवीजन में यूटिलाइज होंगे.
चलो, innermost covering of the egg is vitelline membrane. Yes. हाँ. After reaching the ovum, sperm releases the lytic enzyme that is acrosin. Acrosin का दूसरा नाम क्या है? जोनालाइसिन. याद रखो कि वो जोना पेल्यूसिडा को डिसइंटीग्रेट करेगा, तो जोनालाइसिन. Fertilization normally occurs in ampulla. Yes, attachment of embryo to the wall of the uterus is implantation. Fertilized egg कब implant होता है यूट्रस में? 7 days after fertilization या 1 week after fertilization. B. Number of nuclei present in the zygote. Yes. 1. zygote में फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का, तो एक न्यूक्लियस कंसिडर करेंगे. होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल कि होलोब्लास्टिक एंड इक्वल? होलोब्लास्टिक एंड इक्वल बेटा. After fertilization, the time required to complete first cleavage is 30 hours. Subsequent cleavages को कम टाइम लगेगा. First cleavage will require 30 hours. बाकी लोग? Preventing ovulation. Yes, they prevent ovulation. Which of the following is not a mechanical barrier? Copper T. Copper T is a mechanical barrier. Foam. Foam. Copper T is a mechanical barrier. बोलो. Copper T prevents pregnancy by preventing B. Implantation. No, ma'am. A. फर्टिलाइजेशन ही प्रिवेंट करेगा, बिकॉज वो जो कॉपर आयंस रिलीज होंगे वो क्या एक्शन करते हैं स्पर्म्स के ऊपर? बोलो. Decrease their capacity. यस. सो फर्टिलाइजेशन ही प्रिवेंट हो जाएगा. A will be the most appropriate answer over here. Causative agent of syphilis is bacterial. Chancre are the primary lesions formed at the genital site infected by नहीं, गोनोरिया में नहीं रहता है शैंकर. किस में रहता है? C. नहीं, प्लाज्मोडियम विवैक्स. तो डज इट कॉज एसटीडी प्लाज्मोडियम विवैक्स? Ma'am, B, ma'am. बी. ट्रेपोनोमा पैलिडम. टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड In vitro fertilization. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो ये जो बेटा ये जो एसटीडीज वाला पार्ट है, एटलीस्ट इतना पार्ट आई विल टेल यू द टेक्स्ट बुक. सब लोग खोलो आपका टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 43.
सब लोग खोलो पेज नंबर 43 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और एसटीडीज में से ये दोनों सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, और इसमें से एमसीक्यू बनता है, आता ही है मोस्टली इसमें से एमसीक्यू। सो सी कॉजेटिव एजेंट फॉर सिफिलिस, व्हाट इज इट? बोलते जाओ मेरे साथ, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर सिफिलिस? ट्रेपोनेमा पैलिडियम, दैट इज अ बैक्टीरिया। गोनोरिया के लिए कॉजेटिव एजेंट इज निसेरिया गोनोरी, अगेन अ बैक्टीरिया। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 4 वीक्स। सिफिलिस का, गोनोरिया का मेल और फीमेल के लिए अलग है, बट अगेन इफ यू वांट टू राइट जनरल में तो वो 2 to 4 वीक्स हो जाएगा, 2 to 3 वीक्स, 21 डेज और 14 डेज हाईएस्ट लिमिट्स हैं उसकी। इन्फेक्शन साइट म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, रेक्टल एंड ओरल रीजन। गोनोरिया में भी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट एंड इवन द आई। सिम्टम्स देखो, सिफिलिस में है प्राइमरी लीजन्स कॉल्ड शैंकर at the site of infection. Chancres, they are formed on external genitalia, skin, rashes and mild fever, inflamed joints, loss of hair, paralysis, degenerative changes occur in the heart and the brain. Whereas for the gonorrhea it will be different. आई इन्फेक्शन ये गोनोरिया में होता है, ये एमसीक्यू भी याद रखो। शैंकर इज विथ सिफिलिस, आई इन्फेक्शन पर्टिकुलरली गोनोरिया में होता है। सी इन मेल्स पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा, reproductive ducts, pus from penis, pain and burning sensation during urination, arthritis. In females, pelvic inflammation of urinary tract, sterility, arthritis. Children born, very important point, children born to affected mother suffer from gonococcal ophthalmia and gonococcal vulvovaginitis. Vulva, that is the external genitalia, and vagina, इसका inflammation is vulvovaginitis of girls before puberty. So ये जो gonococcal ophthalmia है, इसको eye infection बोलते हैं जनरल टर्म्स में. So eye infection will be a typical feature of gonorrhea, not of syphilis, whereas chancre will be more particular to syphilis. प्रिवेंटिव मेजर्स में दोनों जगह पे वही आएगा, एडुकेटिंग अबाउट सेक्स प्रैक्टिसेस, सेक्स हाइजीन, अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, एंड हैविंग प्रिवेंटिव सेक्स. ट्रीटमेंट दोनों में चेंज है. ये चार्ट बहुत अच्छे से टिक मार्क करके रखो आपके पास. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है सिफिलिस पे, वे यू विल हैव टू राइट कॉजेटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शन साइट, सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे और ट्रीटमेंट क्या देंगे. सेम फॉर गोनोरिया. एटलीस्ट एक एक पॉइंट अगर आपने आंसर को ये सारे सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लिया और उसमें एक एक पॉइंट लिखा तो यू गेट योर फुल मार्क्स. कोई डायग्राम वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. चलो अब ये पार्ट कर ही रहे हैं तो बताओ व्हाट इज इनफर्टिलिटी. सेम पेज नंबर 43 पर ही रहो. इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. डिफाइन इनफर्टिलिटी. व्हाट इज इनफर्टिलिटी? The inability to conceive naturally. Yes. After regular Unprotected intercourse. ये सारे वर्ड्स डेफिनेशन में आने चाहिए. इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव नेचुरली even after regular unprotected intercourse. Causes of infertility लिखेंगे इसी के साथ, physical, congenital diseases, immunological और even psychological. Hormonal imbalance, endometriosis, that is less sperm count, small size of penis in the males. इतना लिखते आना चाहिए. फॉर अ 2 marks क्वेश्चन, व्हाट इज इनफर्टिलिटी? सी द स्क्रीन. व्हाट इज इनफर्टिलिटी? मेंशन इट्स कॉजेस.
सो डिफाइन करते आना चाहिए इनफर्टिलिटी क्या है और उसके कॉजेज लिखते आने चाहिए. Next, explain the different methods through which an infertile couple can conceive through assisted reproductive technology, ART. ये आ सकता है एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कि डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लेन करो. इसमें सारे मेथड्स लिखेंगे. अब लाइन से पेज नंबर 43 से IVF लिखेंगे, ZIFT लिखेंगे, ZIFT, देन गो ऑन पेज नंबर 44, GIFT लिखेंगे, ICSI लिखेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लिखेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन लिखेंगे. ऑल दीज मेथड्स. ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच एन इनफर्टाइल कपल कैन कंसीव थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. So you will have to write that such couples are infertile couples. अगेन इसमें इनफर्टिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं और फिर कैसे इनको ये असिस्टेड टेक्निक्स से, स्पेशल टेक्निक्स से, हाउ कैन दे बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड, ऐसा लिखेंगे और फिर एक एक ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे. IVF क्या है वो शॉर्ट में लिखेंगे. इसमें फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कराएंगे, स्पर्म कलेक्ट करेंगे, ओवम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन इन विट्रो कराएंगे. उसके बाद जाइगोट को फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे. ZIFT लिखेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, वेदर जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब. देन गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. अगर गमीट्स ही नहीं बन रहे हैं किसी के तो फिर गमीट भी ट्रांसफ़र होगा. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें इन विट्रो ओवम में एक स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं बिकॉज ऐसा पता चलता है कि स्पर्म का पेनिट्रेटिंग पावर कम है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर, बट द स्पर्म काउंट इज़ गुड, तो स्पर्म को कलेक्ट करके ओवम में बाहर वो इंजेक्ट कर देते हैं. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जब यूट्रस में इंजेक्ट करेंगे हम स्पर्म्स. ये सारे पॉइंट्स, एटलीस्ट ये हेडिंग्स तो भी आपको लिखते आनी चाहिए और फिर आप एक्सप्लेन करो कि क्या क्या होता है वो. ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है और इसमें से कोई भी एक मेथड ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है. व्हाट इज़ IVF, व्हाट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी. व्हाट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें क्या लिखेंगे, बोलो. थिंक अबाउट इट एंड टेल मी कि व्हाट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी में आप क्या लिखोगे. Child born to infertile couple through AR. यस. और क्या लिखेंगे. चलो अदर्स. टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या लिखेंगे बेटा. ओके, कौन सा उसमें यूज हुआ होगा टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी में. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ऑल राइट, तभी बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो हो रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया है. ऑल राइट, उसके बाद हम उसको ZIFT में भी डाल सकते हैं. हम उसको ZIFT में ही डालेंगे, मतलब जाइगोट को बाद में इम्प्लांट किया है. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को, जो असिस्ट करती है इनफर्टाइल कपल्स को टू गेट अ चाइल्ड. सबसे पहले तो हम चेक करते हैं बाकी सारे कॉजेज़ कि वाई अ कपल इज़ अनेबल टू कंसीव. उसके बाद अगर हमको इनफर्टिलिटी वाले रीजंस, फर्टिलाइजेशन फेल हो रहा है, ये वाले रीजंस दिखेंगे. सो मेल पार्टनर से मेल गमीट कलेक्ट होता है, फीमेल पार्टनर से फीमेल गमीट कलेक्ट होता है और फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है. All these points you will write. We had also written कि first test tube baby in India was born where. चलो बोलो. Yes. हाँ, तो वो भी add on करेंगे उसको. First test tube baby
was born and उसका नाम क्या था? हर्षा शाह. हर्षा शाह? I don't remember. क्या था उसका नाम? I think some देवी या कुछ था. मैम डॉक्टर का नाम था. डॉक्टर का नाम नहीं, बेबी का नाम क्या था? Baby's name was Harsha and doctor's was Dr. Indira Hinduja. ओके ओके. बेबी का नाम मुझे अभी भी डाउटफुल है, एक बार चेक करना उसको. ओके. Yes, questions like this. See, give the name of causative organ of syphilis and write its symptoms. तो वही जो चार्ट हमने डिस्कस किया, कॉजेटिव एजेंट लिखना है और सिम्टम्स लिखने हैं. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आता है. हाउ इज गोनेरिया कॉज, मतलब अगेन कॉजेटिव एजेंट लिखना है, सिम्टम्स लिखने हैं, व्हाट इज द क्योर एंड प्रिवेंशन, वही वाला पूरा चार्ट. ये सिफिलिस और गोनोरिया बिकॉज स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया हुआ है, क्वेश्चंस आते हैं ये पार्ट से. एनसीईआरटी में इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है अबाउट सिफिलिस एंड गोनोरिया. सो प्रिपेयर. सी दिस क्वेश्चन. गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन सिफिलिस विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो वही चार्ट वाले पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. देखो, पॉजिटिव एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड, साइट ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रीटमेंट. ऐसा क्वेश्चन अगेन फॉर 3 मार्क्स यू कैन गेट. सो सेम स्टेट बोर्ड वाले ही सारे पॉइंट्स कॉपी करने हैं उसमें. वो जो चार्ट दिया है वो सारे इसमें आपको भरने हैं. What are STDs, that is sexually transmitted diseases? Give some examples. Again, syphilis और gonorrhea का example दे सकते हैं और what are STDs ये explain करेंगे. Which are transmitted through sexual intercourse. They are collectively called sexually transmitted diseases. इनको वेनेरल डिजीजेस भी बोलते हैं, इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, RTI. ये पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे. सो जस्ट वो 2 चार्ट आप कर लो, आपका आंसर सॉल्व होता है उसमें. चलो, नाउ फिल इन द ब्लैंक. सेकेंडरी oocyte इज ओव्यूलेटेड आफ्टर डैश सर्च एट द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. बोलो क्विकली. LH search. The egg has not completed meiosis 2, reaches the ampulla of uterine tube in dash hours after ovulation. 24 hours. Yes, 24 hours में ampulla region तक पहुंच जाएगा egg. Next. Cilia and the dash of the fallopian tube help the or direct the egg to the ostium. बोलो, कौन डायरेक्ट करता है egg को ostium के तरफ? इनफंडिबुलम नहीं, उसके क्या रहते हैं एक्सटेंशंस? फिम्बरी डायरेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे मोर करेक्ट आंसर विल बी फिम्बरी. ड्यूरिंग कॉइटस और इंटरकोर्स सीमन इज डिपॉजिटेड इनटू द डैश ऑफ द फीमेल, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलो. वजाइना एंड इंसेमिनेशन. बेटा स्पर्मिएशन तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस है स्पर्मिएशन. ओके, दिस इज insemination. Human male during ejaculation gives out about dash ml of semen and it has an average count of how many million sperms? 2 million, 200 million. 2 to 4 ml, and average count is 200 to 400 million sperms. ऐसे fill in the blanks वाले questions आते हैं state board exam में. Okay, I want to discuss this question because it is given in your state board textbook. Give the examples of primates and non-primates. Primates में तो हम सबको पता है, you will be able to write. So will be humans, apes, monkeys, gorilla, chimpanzee, baboons, orangutans, ये सब primates में आएंगे. Non-primates में birds, reptiles, amphibians ये सब आएंगे.
एंड वी नो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स उसको क्या बोलते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था. रिप्रोडक्टिव साइकिल इज ईस्ट्रस साइकिल और प्राइमेट्स में उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अब ये 4 फेजेस लिख सकते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सिक्रीटरी फेज. वैसे ही ईस्ट्रस साइकिल के भी फेजेस रहते हैं, प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस एंड डाई ईस्ट्रस. फीमेल्स विल जनरली बी सेक्सुअली एक्टिव थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन यहाँ पे सीजनल ब्रीडर्स रहते हैं. ओके, सो फीमेल्स आर सेक्सुअली रिसेप्टिव ओनली ड्यूरिंग द मिड ईस्ट्रस साइकिल. एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो जाती है यहाँ पे, अगर कंसेप्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग रीएब्जॉर्ब हो जाती है अगर कंसेप्शन नहीं हुआ तो. मेंस्ट्रुअल साइकिल रिजल्ट्स इन साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस. हम ये दोनों से रिलेशन में पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ओवरीज वजाइना ऑल्सो रिप्रेजेंट साइक्लिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू हार्मोनल फ्लक्चुएशंस. सो यहाँ पे ओवरीज और वजाइना में दिखेंगे हार्मोनल चेंजेस की वजह से चेंजेस. कोई भी 2-3 पॉइंट्स इसमें से ध्यान में रखो. आप इसमें एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो नीचे, प्राइमेट्स के एग्जाम्पल्स, नॉन प्राइमेट के एग्जाम्पल्स. फेजेस लिख सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल की और ईस्ट्रस साइकिल की. यहाँ पे एंडोमेट्रियम शेड होता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है, शेडिंग नहीं होती है एंडोमेट्रियम की. सो इतना थोड़ा सा ये 2-3 पॉइंट्स लिख लो आपके पास. अगेन स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. गोल्स ऑफ RCH वो छोटा छोटा वो एक बार पढ़ लेना, अभी पढ़ लो तो वो बाद में छूटता नहीं है. पेज नंबर 39 पे गोल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम एंड हाउ टू अचीव इट. गोल्स ऑफ RCH पेज नंबर 39. उसको अभी रीड कर लो, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कंसेप्चुअली समझना है, सिर्फ जनरल वाले पॉइंट्स हैं, बट वो क्लिक नहीं होते हैं एग्जाम के टाइम पे. एक बार देख लो उसको. गोल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम and how is the government trying to achieve these goals. अगेन स्पर्म बैंक का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44. स्पर्म बैंक, अडॉप्शन और सरोगेट मदर पे. सो थोड़ा सा वो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ ईजी ओनली. स्पर्म बैंक और सीमन बैंक बोलते हैं उसको, इज़ द प्लेस जहाँ पे कलेक्शन होता है और स्टोरेज होता है और फिर प्रोवाइड होते हैं ह्यूमन स्पर्म्स और द सीमन. यहाँ पे कलेक्ट होता है सीमन फ्रॉम हेल्दी डोनर्स और वो स्टोर होते हैं बाय क्रायो प्रिजर्वेशन एट अ लो टेम्परेचर. इतना ही लिखना है उसमें. 3 ही पॉइंट्स पेज नंबर 44 उस पर मार्क करके रखो ये 3 पॉइंट्स. अभी नोट्स लिखते मत बैठो, देयर इज़ नो टाइम. आपका स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक को ही एज योर नोटबुक यूज करो. तो स्पर्म बैंक में ये 2-3 पॉइंट्स आप इजीली लिख सकते हो. व्हाट इज अडॉप्शन? Adoption is the legal process by which a couple or a single parent gets the legal rights, privileges and responsibilities that are associated to a biological child for the upbringing of the adopted child. फिर से स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन रीड किया है मैंने पेज नंबर 44 व्हाट इज अडॉप्शन के आंसर के लिए. ऐसे क्वेश्चंस आपको यूजली 1 मार्क या 2 मार्क के लिए ही आएंगे.
व्हाट इज स्पर्म बैंक, 1 मार्क के लिए आएगा. व्हाट इज सरोगेट मदर? दूसरी फीमेल में इम्प्लांटेशन होगा एक दूसरे कपल के जाइगोट का. मतलब पेरेंट्स के गमीट्स अच्छे हैं, बट वो खुद जो फीमेल है उस कपल की, उसका यूट्रस इज नॉट सपोर्टिंग इम्प्लांटेशन. Such couples, they can take the help of another female who can do the implantation, who can give the embryo the space to develop पूरा 9 months gestation का, और फिर बेबी होने के बाद वो बेबी वो कपल को दिया जाता है. सो सरोगेट मदर इज द मदर जो किसी और कपल के चाइल्ड को अपने अंदर डेवलप कराती है. इम्प्लांटेशन हम करते हैं सरोगेट मदर के अंदर. सो अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज सरोगेट मदर? चलो, टोबैको, अल्कोहल, ये सबसे स्पर्म काउंट को क्या होता है? लास्ट कॉलम ऑन पेज नंबर 44. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, अल्कोहल ऑन मेल स्टेरिलिटी? Decrease in the size of testicles. Yes, what else? Sperm count decreases. Yes, blockage in the production of sperm, sperm count decreases, quality of sperm hamper होती है. Again a question, what are the ill effects of alcohol, of nicotine on male sterility? Interferes What are with the synthesis of effects? testosterone. Yes? Okay. Testosterone का synthesis. हाँ, करेक्ट, वो भी लिख सकते हैं. What are the effects of alcohol drinking and smoking on fetus in a pregnant woman? चलो, ये हमने डिस्कस किया है कि प्रेगनेंसी में इफ अ वुमेन इज ड्रिंकिंग अल्कोहल, इज टेकिंग, इज स्मोकिंग, मतलब निकोटीन, टोबैको, ये सब ले रही है, तो क्या होने वाला है? क्वेश्चन है पेज नंबर 42 पे, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. What are the effects of alcohol drinking and smoking on fetus in a pregnant woman? बोलो. Not getting proper nourishment. ओके, सो इसमें लिख लो, अल्कोहल जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस को पास हो सकता है. अल्कोहल इन द मदर्स ब्लड, जब ब्लड में अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है और ये ब्लड फीटस को जाता है, इट कैन गो टू द बेबी थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड. ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा इस आंसर में. इसीलिए ड्रिंकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, मतलब जो बेबी अंदर बॉर्न होगा वो डाइड रहेगा, उसमें लाइफ नहीं रहेगी. एंड अ रेंज ऑफ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज, उसका मेंटल आईक्यू कम हो सकता है, बाकी भी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं. और ये सारी डिसेबिलिटीज़ जो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होती है, हाई अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से बाय द फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनको बोलते हैं फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स. लिखो ये वर्ड, फीटल, वहीं लिखो पेज नंबर 42 पे, फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, FASD, फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स. इतना ही एक्सप्लेन करेंगे. ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 42 पे, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, उसमें बताएंगे कि अल्कोहल क्रॉस हो सकता है, ब्लड के थ्रू जा सकता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस को, मिसकैरेजेस होंगे, स्टिल बर्थ्स होंगे, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे चाइल्ड को. और ये जब 2-3 डिसऑर्डर्स मिलके होते हैं तो उसको बोलते हैं फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स. चलो, डन ऑल ऑफ यू.
सो अभी ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स क्विकली सॉल्व करो और फिर हम जाते हैं एवोल्यूशन पे। बहुत ही कम पार्ट है एवोल्यूशन का, तो वी विल डू दैट। चलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन मेल इज testes. Dash is also called the womb. Uterus. Yes. Sperm fertilizes the ovum in the ampulla of fallopian tube. Disc-like structure which helps in transfer of substances to and from the fetus body is called Umbilical cord. नहीं, अपने पास एक है ना, प्लासेंटा का क्लियरली फर्स्ट स्टेटमेंट है, सी पेज नंबर बोलो किस पे दिया हुआ है प्लासेंटा। 36. हाँ, फर्स्ट सेंटेंस क्या है प्लासेंटा का? Discoidal organ which is going to help in the transfer of substances from the fetus body. Gonorrhea is caused by? Neisseria gonorrhea. Yes, Neisseria. yes. Hormone produced by the testes is? Testosterone. Testosterone. Correct, correct. चलो देखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट सी द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्लासिफाई द बर्थ कंट्रोल मेजर्स गिवन बिलो एज केमिकल, एज मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल एंड परमानेंट मेथड्स, और ये आपको लिस्ट दी हुई है। सो आप क्विकली उसको डाल सकते हो केमिकल में, मैकेनिकल में, फिजियोलॉजिकल में और परमानेंट में। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो कम, जहाँ पे आपको उनको डालना है पर्टिकुलर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेंटिन ऑफ टीथ मीजोडर्म से, तो इनामिल कहाँ से डेवलप होता है? ये वो फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स से है ये क्वेश्चन। Ectoderm. हाँ, Ectoderm. यस। यूरिनरी ब्लैडर? एंडोडर्म, किडनी मीजोडर्म से। यूस्टेशियन ट्यूब एंडोडर्म, मिडिल ईयर बोलो, मीजोडर्म। Mesoderm. हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस है, तो वो नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है? एक्टोडर्म। थायराइड ग्लैंड इज फ्रॉम एंडोडर्म। फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स, अगेन वो जो चार्ट दिया हुआ है थोड़ा सा उसको देख लेना अभी, या उसको एग्जाम के एक दिन पहले भी थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज ये नहीं याद रहता है। आई डू अग्री कि ये चीज़ जो कंसेप्चुअल नहीं है उसको लर्न ही करके रखना है, वो नहीं याद रहता है, थोड़ा सा उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा वाला क्वेश्चन है कि कितने स्पर्म्स, कितने ओवा प्रोड्यूस होंगे? 40 स्पर्मेटोसाइट्स और 40 oocytes से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो वही कैलकुलेशन विच यू नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताओ। ऐसे क्वेश्चंस ये एक मार्क के लिए आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। ओके, तो जाइगोट, फिर मॉर्यूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला और फिर एम्ब्रियो। सो वो सीक्वेंस में लगाते आना चाहिए। फॉर दैट मैटर, अगर ये ऑप्शंस नहीं भी दिए हुए हैं और करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आया, तो आपको जाइगोट, मॉर्यूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, एम्ब्रियो ये लिखते आना चाहिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, इनलिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ स्पर्म्स। क्या क्या लिखेंगे उसमें, एरो लगा के फटाफट? Seminiferous tubules. हाँ, Antitestes. हाँ, Vasiferentium. हाँ, Epididymis and difference. बस। And then ejaculatory duct हाँ, and uterus. यूटरस नहीं, Urethra, sorry. यूरेथ्रा। हाँ, सो क्विकली ऐसे एरो लगा के लिखते जाएंगे पाथवे। इफ इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन और कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ स्पर्म पूछा है तो वो लिखना है सीक्वेंस में। चलो अब देखो एवोल्यूशन चैप्टर, खोलो आपका टेक्स्ट बुक। पहले तो मैं बता देती हूँ कि उसमें से क्या है और क्या नहीं है।
Okay, see the weightage. Marks without option is 4, with option is 6. मतलब 4 मार्क का तो आपको कंपलसरी ये ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ चैप्टर से सॉल्व करना ही पड़ेगा. नाउ बिकॉज पोर्शन बहुत कम है, ये 4 मार्क्स इजीली स्कोर हो सकते हैं. चलो देखो आप. पेज नंबर 94 से चैप्टर स्टार्ट होता है टेक्स्ट बुक में, बट आप लोगों को ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कैंसिल हो गया है अभी. 94, 95, 96, 97, 98, 99. 5.6 देखो पेज नंबर 100 पे. 5.6 मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये है आपको. 5.6 मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दिस इज देयर फॉर यू. इसमें ये पूरा आ जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशंस, जीन फ्लो. अब ये पार्ट आप कर चुके हो जेनेटिक वाले चैप्टर में भी. क्रोमोसोमल एबरेशंस में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, वही चीज़ लिखनी रहेगी. नेचुरल सिलेक्शन में हमारा जो वो एग्जाम्पल है ब्लैक मॉथ्स और वाइट मॉथ्स का, वो लिखेंगे. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को एक्सप्लेन करेंगे. मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस आएंगे. पहले देख लो कि 5.6 पेज नंबर 100, पेज नंबर 101, 102, ये आइसोलेशन तक का पूरा 103 पे. व्हाट इज ये टाइप्स ऑफ आइसोलेशन वाले जो पूरे दिए हुए हैं, वहाँ तक पूरा है आपको. सो इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ये चैप्टर में से. इसके बाद पेज नंबर 103 छोड़ो, 104 छोड़ो, 105, 106, 7, 8, 9 सब छोड़ो, 10, 11, 12. अब पेज नंबर 113 पे आ जाओ. ह्यूमन एवोल्यूशन 5.13, ये है आप लोगों को. सो ये 5.13 ये है, इसको मार्क करके रखो, ये पढ़ना है. और 5.6 मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसमें ए वाला जेनेटिक वेरिएशन, बी वाला नेचुरल आइसोलेशन और सी वाला नेचुरल सिलेक्शन और सी वाला आइसोलेशन. इतना पार्ट पढ़ना है. पेज नंबर 100, 101, 102, 103 पे वो थोड़ा सा पार्ट 5.6 और 5.13 इतना ही है. अब ह्यूमन एवोल्यूशन में पेज नंबर 114 पे ये जो चार्ट है, इसको स्टार मार्क करके रखो. नाउ अगेन सी, ये चार्ट को डिवाइड किया हुआ है. अपीयरेंस, साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, पीरियड, स्केलेटल फीचर्स, पोस्चर, क्रेनियल कैपेसिटी, स्पेशल फीचर्स इफ एनी. हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यहाँ में से किसी के भी एक के सारे फीचर्स आपको लिखने के लिए बोले जाएंगे. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपैथिकस. ऑस्ट्रेलोपैथिकस पूछा. अब ये चार्ट देखो क्लियरली 114 पे. तो ये जो सारे हेडिंग्स में डिस्क्राइब किया हुआ है ऑस्ट्रेलोपैथिकस, वो सारे हेडिंग्स में उसको डिस्क्राइब करेंगे. होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, होमो सेपियंस. एनी ऑफ दीज यू कैन गेट. ड्रायापैथिकस, रामापैथिकस भी मिल सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है. मोर इम्पॉर्टेंट ओवर हियर आर ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, होमो सेपियंस. ये चार्ट ऐसा का ऐसा ही रट्टा मारना पड़ेगा. इसमें कंसेप्चुअली समझने का इतना कुछ नहीं है, आपको लर्न करने पड़ेंगे एक एक के फीचर्स. ह्यूमन एवोल्यूशन में से ये वाला क्वेश्चन हाईली पॉसिबिलिटी है आने की. और उसके बाद ये चार्ट 113 पेज नंबर पे ये जो चार्ट दिया हुआ है, क्लास मेमेलिया में क्या क्या आएगा, उसके बाद ऑर्डर प्राइमेट्स में सब ऑर्डर कौन से हैं, और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स रहेंगे. ये वाला चार्ट पेज नंबर 113 एंड चार्ट पेज नंबर 114, इतना ही पोर्शन ह्यूमन एवोल्यूशन का आपको है, तो उतना बहुत अच्छे से कर लो. यू कैन गेट योर 4 मार्क्स ओवर हियर. सी आई विल टेल यू कैसे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन से. देखो, what are the major changes that took place in evolution of man. हम ये लिखेंगे कि ब्रेन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, इन्हांस्ड इंटेलिजेंस हुआ है, इंक्रीज इन द क्रेनियल कैपेसिटी, अपोजेबल थंब आया है, बाइपोइडल लोकोमोशन और इरेक्ट पोस्चर आया है, शॉर्टनिंग ऑफ 4 लिम्स. अब बिकॉज बाइपेडल हो गए तो 4 लिम्स छोटे हो गए, हाइंड लिम्स बड़े हो गए.
डेवलपमेंट ऑफ चिन हुआ है, ओके, ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक गर्डल, डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्वेचर, ये आपको याद आएंगे कि नहीं आएंगे वो ठीक है, देख लेंगे, बट इतने तो लिख ही सकते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, बायपेडल लोकोमोशन हुआ है, इरेक्ट पॉस्चर हुआ है, ऑपोजिबल थंब है, शॉर्टनिंग ऑफ द फोर लिम्स है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, पहले नहीं था वो सब। 2 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये 3-4 पॉइंट्स क्विकली लिखते आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बोला कंप्लीट दिस चार्ट। अब ये चार्ट कंप्लीट करना है तो क्लास मेमेलिया चार्ट फॉलो करो, पेज नंबर 113, और मुझे बताओ कि फर्स्ट में क्या आएगा। व्हाट विल कम इन द फर्स्ट ऑप्शन? मार्सुपियल्स, यस। सो मैमल्स को हम डिवाइड करते हैं मार्सुपियल्स, मोनोट्रीम्स और यूथेरियन में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्सुपियल्स आर पाउच्ड मैमल्स, पाउच में रखते हैं बच्चों को। मोनोट्रीम्स आर एग लेइंग मैमल्स एंड यूथेरियंस आर प्लासेंटल मैमल्स। तो ह्यूमंस को कहाँ डालेंगे? मार्सुपियल में, मोनोट्रीम्स में और किस में? यूथेरियंस में, हाँ। ऑल राइट, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अ इंडिविजुअल 1 मार्क क्वेश्चन कि मैमल्स कितने टाइप के रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर गिविंग बर्थ। दे कैन बी पाउच्ड, दे कैन बी एग लेइंग, दे कैन बी प्लासेंटल मैमल्स। उसके बाद यूथेरियंस को डिवाइड किया है ऑर्डर प्राइमेट्स में, सब ऑर्डर प्रोसिमी, एंड दूसरा सब ऑर्डर व्हाट इज दिस नंबर 2? एंथ्रोपोइडी, यस। उसमें उसके बाद इसमें आएगा न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और होमोनिडी। उसके बाद होमोनिडी में आएगा हाइलोबटिडी, पोंगिडी एंड होमिनिडी। होमिनिडी में डालेंगे ह्यूमन बींग्स को। सो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इनके अलावा कोई भी आ सकता है। ये चार्ट को स्टार मार्क करो। ओके, सो आपको अपने आप भी ये लिखते आना चाहिए। ये पार्ट थोड़ा लर्निंग का ही है बेटा, ये लर्न ही करना पड़ेगा, तो उसको लर्न करके रखो। देयर इज, इसको आप थोड़ा कंसेप्चुअली समझ के नहीं रख सकते, ये लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो आएंगे। देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग: ट्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, होमो सेपियंस। मतलब अपना पूरा चार्ट ऑफ पेज नंबर 114, इसमें से कोई भी 4 लेके आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सीधा सीधा यही आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: ट्रायोपेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, निएंडरथल मैन, होमो सेपियंस। ये 4 दे देंगे, 1-1 मार्क एक इसके लिए रहेगा। 2 मार्क्स के लिए कोई भी 2 या कोई भी 1 अगर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे तो वैसा भी कोई 1 भी आता है 2 मार्क्स के लिए। सो स्टार मार्क करो चार्ट को ऑन पेज नंबर 114। इसको लर्न करके ही रखना है, रटा मार के ही रखना है। इसको आपको एग्जाम के 1 दिन पहले भी देख के जाना पड़ेगा, बिकॉज ये लर्न नहीं रहता है। मैंने भी ये चार्ट बहुत बार लर्न की है, बट जब आपको एक्चुअली लिखना है उसके 1 दिन पहले आपको ये पार्ट देख के जाना पड़ेगा। सो ये वाले पेजेस को फोल्ड करके रखो आपके टेक्स्ट बुक में, ये चार्ट को 113 और 114 को। इनको आपको 1 दिन पहले देखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं याद आते हैं पॉइंट्स लिखने के लिए। चलो अब देखो 5.6 वाला, पेज नंबर 100, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये किस किस ने दी थी? वो जो सारे साइंटिस्ट हैं वहाँ पे, उनमें से 2-3 जिनके भी नाम याद आते हैं एटलीस्ट उतने लिखने हैं। एंड उसके बाद सारे फैक्टर्स, जीन पूल क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, ये सब उसमें एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज यही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपको है, तो ये थ्योरी अच्छे से करके जानी है। एक्सप्लेन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें यू हैव टू गिव द नेम्स पहले कि कौन कौन इन्वॉल्व हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के, एंड देन वी विल प्रोसीड।
सो प्रोसीड करने में इसी का सीक्वेंस फॉलो करो आप टेक्स्ट बुक का। जीन पूल क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं, फिर जेनेटिक वेरिएशंस में जीन म्यूटेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। वी हैव डन ऑल दिस। क्रोमोसोमल एबरेशंस, ये आपको अभी बहुत अच्छे से समझता है। यू कैन राइट अबाउट डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, इतना पूरा लिखना पड़ेगा जेनेटिक वेरिएशन वाले पार्ट में। फिर नेचुरल सिलेक्शन में सिर्फ ये वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला, बिस्टिन बेटुलेरिया, बिस्टिन कार्बोनेरिया, ये मॉथ्स का, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले कौन थे, बाद में कौन आए, क्यों ऐसा चेंज हुआ कलर में, पहले वाइट डोमिनेट करते थे फिर ब्लैक डोमिनेट किए। तो ये वाला एग्जाम्पल जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का है, ये आप इजीली लिख सकते हो, बस एक बार यहाँ से रीड कर लो, देन यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन टर्म्स। और फिर इसका थर्ड पार्ट देखो, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो यू विल फर्स्ट राइट दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट्स, जेनेटिक वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। फिर आइसोलेशन में हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और फिर से आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स में हम लिखेंगे प्रीमेटिंग, उसमें हैबिटेट आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन। और फिर पोस्ट मेटिंग में गमीट मोर्टेलिटी, जाइगोट मोर्टेलिटी एंड हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ये पार्ट थोड़ा सा लर्न कर लो, अभी ही क्लास ख़त्म होने के बाद ये पार्ट लर्न कर लो, 2-3 बार रीड मारो तो लर्न हो जाएगा। हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब है ही ये पार्ट चैप्टर का, तो ये पार्ट छोड़ नहीं सकते। पूरा चैप्टर रहता तो हम सोचते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, बट मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के ये तीनों पार्ट्स, जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन। अब इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है, आइसोलेशन पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इंडिविजुअल क्वेश्चन आने का। सी क्वेश्चंस लाइक दिस, व्हाट इज आइसोलेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब आपको ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्सप्लेन ये वाले प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग वाले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस। व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट इज म्यूटेशन, व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज जीन फ्लो, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऐसे क्वेश्चंस 1-1 मार्क के लिए आ सकते हैं। सो ये पार्ट आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाओगे, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाला। जस्ट गो थ्रू इट। इसमें से किसी को कोई पार्ट नहीं समझा है तो मुझे इमीडिएटली कॉल करो, अभी आप पढ़ो उसको 10 मिनट और मुझे कॉल करो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट ये पार्ट आप कंप्लीट करो इसमें से। बाकी क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो ऐसा रहेगा, देखो नेचुरल सिलेक्शन पे ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, बाय टेकिंग इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज वन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो फिर से इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन करना है, प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या था, पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या हुआ, क्यों हुआ ये चेंज, बिकॉज प्रीडेटर पकड़ ना सके तो प्रीडेटर से बचने के लिए ये चेंज हुआ स्पीशीज़ में, नेचर सिलेक्ट करेगा उसको जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा। सो ऑल दिस यू हैव टू एक्सप्लेन। तो नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन और ये जेनेटिक वाला पूरा पार्ट ये करना ही है ये चैप्टर से, और पेज नंबर 113 और 114 वाले 2 चार्ट वो करने ही हैं ये चैप्टर से, बिल्कुल छोड़ के मत जाओ। पूरे 6 मार्क्स आपके वहाँ पे सॉल्व होते हैं। चलो सो अब सॉल्व करो कुछ MCQs और फिर बंद करते हैं क्लास। सम MCQs फ्रॉम दिस एवोल्यूशन। अब MCQs भी इसी पार्ट से आएंगे, एवोल्यूशन से अगर कोई MCQ आएगा तो इसी पार्ट से आएगा, ह्यूमन एवोल्यूशन वाले पार्ट से और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वाले पार्ट से, इसीलिए ये मत छोड़ के जाओ ये पार्ट। उसमें आपका MCQ भी सॉल्व होता है और सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में आया तो वो भी सॉल्व होगा।
सो सी इट्स सच अ बिग चैप्टर, लेकिन उसका थोड़ा सा ही पार्ट है तो उसको कंप्लीट कर लो. चलो देखो एमसीक्यूज अभी. रेफर टू द चार्ट पेज नंबर 113 और 114 और फिर देखो आपको सॉल्व करते आ रहे हैं क्या. चलो बोलो क्या आंसर होगा. कैसा फेस था एप में, कैसा फेस था बोलो. प्रोग्नाथस फेस तो था ना बेटा, बाहर प्रोट्रूडिंग फेस. टेल प्रेजेंट थी क्या एप में. चिन एब्सेंट है वो करेक्ट है, 4 लिम्स बड़े हैं वो करेक्ट है. बी मैम. हाँ, tail is present is not the characteristic shown by the apes. Connecting link between ape and man, ऑस्ट्रेलोपेथिकस. ये एमसीक्यू हम नीट में भी सॉल्व करते हैं. विच ह्यूमन एंसेस्टर इज क्रोनोलॉजिकली नियर टू अस. फिर से आपको वो 114 का चार्ट पता चाहिए ये आंसर करने के लिए. बोलो. निएंडरथल मैन. हाँ, निएंडरथल मैन. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस इज. फिर से वो चार्ट पता चाहिए ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए. करेक्ट सीक्वेंस लगाना है. बी करेक्ट. बी. सो वो चार्ट करके जाओ अच्छे से, उसको मत छोड़ो. एमसीक्यूज भी उसी में से आएंगे. हाँ, क्लियरली दिया हुआ है वो चार्ट में. अगेन नेक्स्ट, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस. कितनी है चार्ट देखो. 900. यस, सी द चार्ट. अब यहाँ पे ये स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में जो वैल्यूज दी हुई है वही फॉलो होगी. cranial capacity of Neanderthal man 1400. So अभी I am ending the meeting because it is time. ये आपको चाहिए तो मीटिंग ऑन रहने देते हैं. आप सब भी ये टेक्स्ट बुक हाथ में है ही. आई वॉन्ट यू टू रीड पेज नंबर 100, 101, 102, 103. बेटा जिनका दूसरा क्लास है केमिस्ट्री का, योर लीव. बाकी लोग इतना पढ़ के ख़त्म करो आज का काम. मैं रुकी हूँ, उसमें से कोई पार्ट नहीं समझा है तो वो समझ के ले लो.